House. Good morning. बोलो आप सुनाइए। Good morning, sir. 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 पहले आप लोग Good morning, sir. प्रवेश करूंगा। बोलिए। Now my turn. Once again, good morning to all of you. So right now, yesterday we have discussed about you have come along with the which book? Today we are going to read the geography book. Geography book. कंप्यूटर के क्लास चलते ही नहीं कंप्यूटर के Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जिस क्लास में उस क्लास की बात कीजिए। कंप्यूटर की क्लास पिछली थी क्या सर? हाँ सर कंप्यूटर की चली थी। हम पिताजी भी सही बताओ चली। आज इस लेसन में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आज हम इसी लेसन पे फोकस करेंगे। अब तो बोला तो सुना ही क्या। अगर ऐसा ना पता ऐसे तो ऐसा है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। द लेसन इज मोशंस ऑफ द अर्थ। motion of the earth. Most probably we have discussed about that some things yesterday regarding rotation, revolution, leap year, and then other things also, the circle of illumination, the earth, day and night. So right now, yesterday just we are discussing about one thing which is related, how the season formed. That motion of the on the earth at some point, that which is known as summer solstice, which is known as winter solstice, and what is known as equinox. So now I am going to mute to all of you. So now listen. First of all, when we talk to draw a sun in the middle of it, as well as we talk about the elliptical orbit of the earth on which the earth revolves around the sun. Very good. So here we draw 4 figures, and these all the figures related to earth. These all the figures related to earth. I think most of you, and not most, all of you familiar where we show the North Pole and South Pole. This pole is also tell about the hemisphere. Clear? North upper side and the south lower side. So if you see in this is the sun, and this goes to sunlight like this way. Clear? Then same thing. It is very clear that where the sunlight falls,
or the portion which receives the sunlight on the earth, we call it, or it is known as daytime. So if you see in this sun, this arrow shows the what? The sunlight area. Sunlight area is related with daytime. Now, the formula to learn about this, just 21, 21, 22 and 23. Clear? This is easy formula to learn about this. Then, now, another thing. Another formula is J M B S. So JMDS. So yesterday we discussed about the J denotes June, M denotes March. These all are the names of month. June, March, December, and this one is September. Now, this numbers and the months you have cleared. The NP, SP at every point. Here. Now, now see this SW formula to learn. How do you learn this? So in the December I have erases this. By this you can also understood. So this one is WS. And if you talk about this, this is known as equinox. Equinox at both the point. Clear? Now, if you see in this SSW and WWS, what does stand? We have to know about this. So first of all, S is also related with southern also. So, but here this S denotes different. First of all, summer. S here denotes what? Summer, and W here denotes winter. Then summer, automatically summer in NP, northern hemisphere or northern pole. Clear? So we can also say pole, or we can also say N or H. It is clear? Both the things, the poles and the hemisphere is the same thing. You don't have to confuse with these words. Next one. Then again S, this S shows summer's solstice. Summer solstice. Later we'll discuss what is the meaning of summer solstice and what is the meaning of winter solstice. Next one. Now, here we have seen this summer in northern hemisphere. Then winter in what? This portion, this upper part is northern pole or northern hemisphere, and this lower is southern hemisphere. So winter in southern hemisphere. This simple formula से आपको बता रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे. बताया ना, जिस तरीके से आपको बताया कि आप ड्रॉ कर लिए, सनलाइट हो गया, फिर आपको बताया कि 21, 21, 22 and 23. ये तो याद रहेगा, बहुत सिंपल है. फिर फॉर्मूला इज JMDS.
JM, DS. J denote for June, M for March, D for December, and S for September. If you know the dates, it is automatically then SSW and WWS. The S denotes here summer in northern hemisphere or NP, then summer solstice, and then winter in southern hemisphere. Then again goes in a reciprocal way. Then first of all, winter in what? Northern hemisphere. Upper side is northern, so winter in northern hemisphere. There is no place, so I have written here just H. Winter in northern hemisphere. Then this one is summer solstice and this one is winter solstice. Then S. Then here this just the opposite of it. What? Here winter in southern hemisphere. Right now summer in no, here this one is S now. This is SSW and this is WWS. So again here is a winter. Now here is a summer. Now summer in the southern hemisphere. Summer in the southern hemisphere. Are you understanding? Summer in the southern hemisphere. Now you understood about this. The things which you have to know about. What is just summer solstice and winter solstice, you have to know about this. And the equinox. Because you are familiar with the summer and northern hemisphere and southern hemisphere. जैसे एक जगह होगा उसका एकदम दूसरा जगह उल्टा होगा. जैसा होगा, जैसे एग्जांपल इसको जब समर सोल्स्टाइस आपको बताएंगे तो सिंपल सा, अगर यहाँ समर पड़ रही है एक ही समय में, तो अगर इधर नॉर्दर्न पोल में समर पड़ेगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा विंटर पड़ेगी. उस तरह से उधर की तरफ अगर विंटर उधर पड़ेगी तो उधर साउदर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ेगी. एंड वी आल्सो नो अबाउट दैट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. In a simple example, the Christmas falls in winter season, but in Australia, the Christmas falls in summer season. एक ही साथ सबको अनम्यूट करते हैं. रुकिए एक मिनट, अभी हम बताएंगे. अभी हमने क्लियर नहीं किया है, इसलिए अभी सबको मौका देंगे बोलने का. अभी हम बता रहे हैं, अभी बताना बहुत बाकी है. एक एक करके बोलेंगे, खिचड़ी नहीं पकाएंगे. हाँ जी. सॉरी सर, SSW का फुल फॉर्म क्या था? बता रहे हैं बेटा. देखिए SSW, ये SSW पहली बात जो SSW हमने लिखा है, जब उसको बुक में देखते हैं तो लिखा होगा समर इन. समर इन बुक में लिखा है, एक बार ध्यान से देखिए. लिखा बुक में समर इन साउदर्न, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. समर की जैसे कि आपका अर्थ हो गया, अर्थ के स्ट्रक्चर में ऊपर का जो साइड है, ये कौन सा है साइड? नॉर्दर्न पोल है. तो इस पोल को हम हेमिस्फीयर भी कहते हैं. तो इसमें समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरह होती है? कौन से दिन? 21 फिर ये समर सोल्स्टिस कहलाता है. अब ये बताना बाकी है कि समर सोल्स्टिस क्या है. ठीक है, तो ये SSW में समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन S, then again S. This again S denotes summer solstice. Clear? Then after winter in southern. क्या लिखे हैं? क्या चीज सर अब तो वीडियो नहीं आ रहा है. ऐसा है कि सर आप सोल्स्टाइस की स्पेलिंग क्या लिखे हैं? ये वाटर है तो हमें दिख रहा है. हॉच पॉच हो गया है. पहली बात, समर की स्पेलिंग आप जानते हैं, नॉर्दर्न की सर स्पेलिंग आपकी आवाज जानते नहीं हैं. आ रही यस है. सर जानते हैं. SUMMER. तो उसको आप स्पेलिंग लिख लेंगे, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये समर सोल्स्टाइस है. बुक में ध्यान से देखिए, आप लोग पूरा लिखा होगा. पेज नंबर 19. हेमिस्फीयर के नीचे क्या लिखा पेज है? नंबर 19 सीधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑलरेडी रिटन. के बाद क्या लिखा है? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है.
सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे वो क्या लिखे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे लिखे हैं, हम एनपी से भी डिनोट किए हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम एनपी से भी कहीं कहीं डिनोट किए हैं। तो हेमिस्फीयर और पोल एक ही चीज है, गोलार्ध और पोल, पोल माने कि अक्षांश एक ही चीज है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हेमिस्फीयर एंड सेम थिंग। प्लीज आप सॉल्व का इसकी स्पेलिंग बता दीजिए, नहीं आ रही है लोग इसका स्पेलिंग ये रहा SOLSTICE, ऐसा बताइए। CE मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आपके पास सर दिख नहीं रहा है 4 वाला। क्या ऐसा है कि आपके पास बुक नहीं है? सर है। फिर आप बुक में देखिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे क्या कहाँ लिखा लिखा है? पहली बात आप बुक तो समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बुक लेके नीचे बैठिए क्या आप। लिखे हैं? सर एकदम समझ। सर हाँ जी कहिए। ए भैया तुम दरवाजा बंद कर दो। समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे क्या लिखा है? अरे बेटा देखिए, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर सोल्स्टिस, विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो समर सोल्स्टिस की स्पेलिंग क्या लिखा है? समर की स्पेलिंग जानते हैं ना? सोल्स्टिस। समर की स्पेलिंग जानते हैं ना? सोल्स्टिस की स्पेलिंग बुक में ही लिखी है, आप बुक में देखिए। अगर बुक है आपके पास, पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। यही बोल रहे देखना ना। पेज नंबर 9 ये भी म्यूट है, देख लो। बोलेगा भाई, बोलेगा तो ऐसा है कि आप लोग चुप रहिए, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है? तो आप लोग अपना म्यूट किए तो मैं नहीं जानता हूँ, ध्यान से देखिए। बाकी है क्लियर है? फिर आपको मैंने जिस तरह से बताया, जिस तरह से इधर चल रहा है बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। ये SSW है ना, तो वो WWS चलेगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। जो बच्चा बोला है नो सर, उसे क्या नो है बताइए, क्या प्रॉब्लम है? बताएंगे तभी तो मैं जानूंगा। बताइए। चलिए आगे करते हैं। शिवांगी सिंह, आर यू लिसनिंग? शिवांगी सिंह, यस सर। कोई डाउट है अब तक? नो सर, अब कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखिए बाकी स्पेलिंग को, बीच में लोग बोलने लग रहे थे। ये बड़ा ही पेचीदा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा, बस इसको समझना है, सिर्फ स्पेलिंग मत समझिए। अब इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले इक्वी इक्वल से बना, इक्विनॉक्स का मतलब समझिए इक्वल, ठीक है? इक्विनॉक्स का मतलब यह है इक्वल। इक्वल माने क्या? डे equal to night, means the duration of day and night becomes equal of Sir, your video is not coming. half and half period. Then again, this equinox also resemble on 21st of March, and this is September, means 23rd September, means on 21st of March and 23rd of September, what? The day and night will become already equal on these dates, 21st March and 23rd September. Clear? Now the difference. Why? It have a 2 days like 21st March and what? If you see this, spring. What the full form of WBC? Sir. Sorry. Now see this. If you see this, see this, both the things. If you see this, What is पहले the ध्यान full से form सुनिए, of एक मिनट में WBC? बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। देखेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ स्प्रिंग लिखा है और नीचे क्या लिखा है? ऑटमन लिखा है। इधर देख नहीं रही पल हूँ। What is the full form of WBC? पहले बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और कोई बात नहीं करेगा।
स्प्रिंग और ऑटमन, और यहाँ पर उसका ऑपोजिट देखिए, जिस तरह से यहाँ स्प्रिंग है ऑटमन है, अब उल्टा, मतलब ध्यान से देखिए, स्प्रिंग क्या है, नॉर्दर्न पोल में स्प्रिंग है, साउदर्न पोल में ऑटमन है। किस डेट को? 21 मार्च को। और यहाँ भी इक्विनॉक्स है, लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ स्प्रिंग की जगह ऑटमन पहले होगा, इसके बाद से ये स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंग का मतलब सीजन होता है जो फरवरी का, जो यहाँ पर इंडिया में बिल्कुल ही नॉट टू मच कोल्ड, नॉट टू मच हॉट, विच कम आफ्टर इन द मंथ्स ऑफ व्हाट, पतझड़ के बाद जो आता है, सर्दी के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन। यस सर। देन ऑटमन, ऑटमन इज बेसिकली रिलेटेड विद स्टार्टिंग सीजन ऑफ लिटिल बिट ठंड, ठंड का होता है, पतझड़ टाइप का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल 21 मार्च को यहाँ पर नॉर्दर्न पोल में स्प्रिंग सीजन लाई करेगा, और वहीं पर साउदर्न पोल में ऑटमन सीजन या हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन लाई करेगा। वहीं पर 22 सितंबर में वहां स्प्रिंग था, अब यहाँ स्प्रिंग की प्लेस पे यहाँ ऑटमन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑटमन होगा तो नीचे वाला स्प्रिंग होगा। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात बस यस सर। इसका ये मतलब डिफरेंस, यही हुआ ना कि इसका सर जो difference- नॉर्थ में अगर सर एक मिनट, यस सर, यस सर। हाँ शिवांगी पूछिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर नॉर्थ में ऑटम पड़ेगा तो हाँ साउथ में स्प्रिंग, हाँ और बिल्कुल, अगर साउथ में हाँ। ऑटम पड़ेगा तो नॉर्थ हाँ। में स्प्रिंग। हाँ, तो बस ये लोकेशन सेट करनी है, लोकेशन का मतलब, और टाइम पीरियड पर डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे बिल्कुल रिवर्स सीजन होता है, क्योंकि सबको सब सीजन चाहिए, या कह सकते हैं सब सीजन नहीं चाहिए। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो इसीलिए सभी को इक्वल सीजन मिलने लगते हैं। देखिए हमारे Yes, यहाँ sir. season- सर देखिए हमारे यहाँ सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ क्या चीज, सर, DEC का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा? DEC का फुल फॉर्म? यहाँ डीसी तो मैंने लिखा नहीं है, SSW लिखा था और WWS लिखा था। DCE ये दिसंबर है, दिसंबर, मैंने लास्ट में स्पेस नहीं था तो इसको हटा दिया, दिसंबर है ये। ओह ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो, बाद में ज्वाइन किए हैं आप, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, बिल्कुल लाइव Yes, का sir. अपोजिट करेगा। अब क्लियर? अब ये समझना है कि सर समर सोल्स्टिस क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है, बस। बाकी हेमिस्फीयर आप जानते हैं। एक चीज जानी गई कि इसका अगर ये नॉर्थ पोल में जैसा होगा एकदम उसका उल्टा होता है साउथ पोल में, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा डेट्स में, बिल्कुल उल्टा है ना यहाँ पे, तो बस इसके अंदर भी समर सोल्स्टिस में उल्टा ही होगा, और विंटर सोल्स्टिस में। अब देखिए विंटर सोल्स्टिस में बुक में देखेंगे तो बुक में आप पढ़ते ही रह जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा इसलिए बता रहा हूँ, समर सोल्स्टिस देख लिए, समर सोल्स्टिस। आ जाएगा। The summer solstice means the longest day and the shortest night at all these places occur on 21st June. 21st जो जून है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट डे होगा, और क्या होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। एक चीज सिंपल सा है कि अगर किसी भी पोल में कहीं भी, चाहे 21 जून हो या 22nd दिसंबर, अगर लॉन्गेस्ट डे होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगा ना, ऑटोमेटिकली है कि अगर लॉन्गेस्ट डे है तो शॉर्टेस्ट नाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये समर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट Sir, the video नाइट। is not coming. मैं रिदम पे होता हूँ तो एक बच्चा बोल देता है, सर योर वीडियो इज नॉट कमिंग। It Yes, also sir, create बहुत problem for me also. Now understood. It is by your side some fault. Now listen this. So in summer
summer in northern hemisphere, the summer solstice. Clear? The summer solstice means the longest day and the shortest night. 17. On the date 21st June. On 21st June, it is clear that what? That जो उस दिन होगा वो सबसे बड़ा होगा और नाइट सबसे छोटा छोटा हो जाए। क्लियर। अब विंटर सॉल्स्टाइस। यस सर। यस सर। यस विंटर सर। सॉल्स्टाइस को ध्यान से देखिए। यस सर। बताइए विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होगा। देखिए on 22nd December the tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilt towards it। ठीक है 22nd December। अब क्या लिखा है ध्यान से देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कर रहा है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको पहले ही बताया था, लेसन स्टार्ट हुआ था कि इसमें अगर आप देखते हैं तो जिंदगी में एक और फॉर्मूला याद रखिए कि कभी नहीं भूलेंगे। क्या 20 से इक्वेटर जाता है तो बताइए। 20 से इक्वेटर जाता है। यस सर। ठीक है उसके बाद से ये देखिए ये डिग्री, ये क्लियर है कि 0 डिग्री है। एक मिनट, और ये ऊपर भी 2 डिग्रीज और होती है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ भी ऐसे। तो आपको बताइए 0 डिग्री है, ये 23 डिग्रीज है, 1.2 डिग्री। ये साउथ का है, ये 23/1/2 डिग्री। ये 66 कौन है? 66/1/2 degree north, and this is 66/1/2 degree south। क्लियर। अब ये तो इक्वेटर है, ये आपको मैंने ये क्या लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखा है। इसके अंदर फॉर्मूला ये याद रखना है कि इसमें कैप को बिल्कुल ये जो कैप है उल्टा पहनना है। क्या? तो कैप ऊपर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर कैप को नीचे की तरफ लॉन्च करना है। तो ये 23/1/2 डिग्री है, यही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यही है, 23/2 डिग्री साउथ। ठीक है, तो 23/1/2 डिग्री साउथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर 22 दिसंबर को सनलाइट जो पड़ती है स्लांटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। क्लियर? सनलाइट जो स्लांटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और so the large portion of the southern hemisphere gets light, therefore is the summer in the southern hemisphere। तो इसीलिए समर क्या है, समर जो है इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, और विंटर हेमिस्फीयर में सॉरी और नॉर्दर्न पोल में यहाँ विंटर होती है। तो ऑटोमेटिकली है, अगर यहाँ समर होगी तो उसके दूसरे वाले पोल में विंटर होगी। जैसे यहाँ पर है, क्या है ये ध्यान से देखिए, SSW है कि अगर समर नॉर्थ पोल में पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, साउथ पोल में क्या होगा, विंटर होगा। उस तरह से ऑटोमेटिकली बिल्कुल उसका उल्टा है कि जब यहाँ क्या होगा, ठीक है, यहाँ अगर ऊपर नॉर्थ पोल में विंटर पड़ेगी तो नीचे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कुछ? और ये पोर्शन, ये जो ऐसे ऐसे करके बुक में देखेंगे तो बुक में कुछ डार्क होगा, कुछ लाइटेड होगा। तो जो लाइटेड पोर्शन है ऐसे करके हाफ जो है, ठीक है, तो ये सनलाइट है, क्योंकि अर्थ की शेप जॉइंट है और ये मूव करता है। तो जो उसके सामने आता है वहां डे टाइम हो जाता है और बाकी उसका नाइट होता है। वही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी है। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज अर्थ डे। एंड बाय दिस प्रोसेस डे नाइट फॉर्म एंड इट विल take the 24 hours। Clear? And the another movement is revolution, and by the revolution, this is all the revolution process,
and by this revolution process all the earth get the different season at the different poles and the different countries. Clear? Yes, sir. ये देखने में बेटा बहुत इजी है, ये देखने में बहुत इजी है, लेकिन इसको समझना बड़ा ही टेढ़ा है, इसीलिए आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आई विल टेक अ फुल पीरियड टू अंडरस्टूड. समझ आए कुछ आए कि नहीं समझ? Yes, sir. Yes, sir. पहली बात अब उसको होमवर्क समझ लीजिए, इसको बनाएंगे जरूर. यस सर. ठीक है, इसको फार्मूले से डेट लर्न करेंगे जो मैंने बताया 21 22 Sir, DSP. ESP Sir, DSP. DEC दिसंबर. और कुछ ऐसे में सर क्लियर नहीं दिखा दे रहा. ऐसा है बेटा, जिसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसके पास बुक होगी, पेज नंबर 19 को ऊपर करके बैठे और ध्यान से देखे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. बाकी जो इसमें से कुछ वैसे कुछ समझ नहीं आया, बाकी आपके पास बुक है, बुक को एक बार कम से कम 5 से 10 मिनट फिगर को देखिए. ठीक है, कितने दिन में लगाती है? क्या चीज? अर्थ रेवोल्यूशन, अर्थ जो रेवोल्यूशन लगाती है उसका एग्जैक्ट बिल्कुल टाइमिंग बड़ी क्लासेस में बताया गया, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्मल टाइमिंग क्या है जो बता दे. अब तक आपने पढ़ा 365 डेज में, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है. 365 days plus 6 hours. 6 आवर्स. और वही 6 100% आवर को जब जोड़ते जाते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? देखिए 6 + 6 + 6 + 6, 6 1 जा 6 4 जा Sir, 6 plus 6. 24 is equal to what? 24 is equal to 1 day. 1 day. And at the वही 1 4th day year, leap year में जोड़ा. and this 4th year counted as leap year. Clear? बहुत इजी तरीके से बताएं, सबको समझ में आना चाहिए. Yes, so when this leap year came, so on the leap year the February falls off The smart boy. जिस वर्ष लीप ईयर आता है उस वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है. और बोला बता चुके हैं किस तरह से होता है वो, क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन जो होता है 365 आवर्स 6 डेज का होता है. ठीक है, और वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा. 24 hours equal to 1 day, and the 1 day in the 4th year counted as leap year. And when this counted, automatically the February consists of 29 days. And this is the formula, the circle and seasons, how this formed. 21, 21, 22, 23 JMDS. Then SSW and WWS. ये फार्मूला अगर भूल गए तो जिंदगी में कभी भी आप टाइम पता कर लेंगे सीजन में, कौन से सीजन में किस पोल में क्या होता है. सर एक बार और बता दीजिए. सर देखिए द फॉर्मूला इज दिस, ध्यान से देखिए, ये देखिए 21, 21, 21, 22, 23. Then you have to learn about this month's name. 21, 22, 23. Please M, 23, 24, 26, S. 29. The J denotes for June, then M denotes for March, P. and D denotes for December, and S denotes for September. Then SSW, ध्यान दीजिएगा, SSW बताएं आपको. SSW and just opposite here WWS. S means summer in northern hemisphere. Summer in northern hemisphere. Summer in northern hemisphere. Then S here is basically double Summer S, summer solstice. Then again W denotes means
winter in southern southern hemisphere. hemisphere. winter in south And when Southern hemisphere. southern hemisphere, और जब इधर Right जाते in the हैं side. तो ध्यान से देखिए, जो बताए थे आपको हम, इसमें WWS में देखिए, ये W है, फिर ये W है, और ये S है. तो winter In northern hemisphere. northern in hemisphere, northern then a hemisphere. winter solstice WS, और ये Winter solstice. summer Summer in southern hemisphere. southern Summer hemisphere. in southern hemisphere. और जिधर एक तरफ जैसा होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है. और दूसरी डेट यहाँ बताए हैं, ये मार्च वाली और ये सितंबर वाले, इसमें फॉर्मूला चलेगा ई का, इक्विनॉक्स. इक्वल मींस डे एंड नाइट ऑन द 21st March and 23rd September are equal. And summers, when we talk about the summer solstice, in summer solstice the day will become longer. So automatically when the day will become longer, the night will become the shortest. And here that goes in reciprocal way. Here what? The nights will become longer and the day will become shorter. So आज के लिए इतना ही. कल जिसको पूछना है पूछेगा. कल से हम फिर से सिविक्स का स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. It will be just Okay, sir. 1 minute. It will be. सर WBC का मतलब WBC? सर अरे WBC एक्सेल होता है. यहाँ WBC नहीं है, WWS है वो. Sir, WBC क्या होता है? अरे बेटा WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल. जब आप cells. बीमार होते हैं वो तो हमारे बीमार में शरीर जब में पाया दवाई जाता खाते हैं ना तो आपकी बॉडी जो हीट होती है तो WBC के कारण ही होता है. वो बोल रहे हैं WBC. ठीक है, चलिए. थैंक यू. Like मुझे तो सबको मालूम चला, इसे तक क्या